اسی کے پرفضل جلال نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں شکر گزار ہوں اپنی پوری ٹیم کا، ہم خدمت بھائیوں کا، سینئر پاسٹر مختار جوہر صاحب کا اور سیمل پیارا صاحب کا، جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ تک خدا ان کی آواز کو، خدا ان کے کلام کو پہنچا سکوں۔ آج خدا ان کے کلام میں سے جو ہم سیکھنے کے ہیں، وہ جو ٹاپک ہے وہ سب سے بڑا حکم ہے۔ اپنے سر کو جھکائیں گے خدا ان کی حضوری میں ایک چند ہمک کے لیے۔ میری درخواست ہے سب آنکھیں بند ہو جائیں۔ ہم ایک لمحہ کے لیے سر کو جھکائیں گے، خدا ان کے نام کو جلال دیں گے۔ پریز ہالیلویا۔ قادر مطلق آسمانی باپ مسیح کے پرفضل جلال نام میں ایک بار پھر میں تیرے پاک فضل کے سامنے آتا ہوں، اپنے آپ کو پیچھے تجھے آگے کرتا ہوں کیونکہ میں زیرو ہوں پاک۔ سر جلال تجھے دیتا ہوں پاک خدا، تو ہی فضل کر، کرم آج تیرا وہ وعدہ پورا ہو کہ بولنے والے تم نہیں بلکہ خدا کا روح ہے، اور پاک خدا سارا جلال تجھے ملے۔ یسوع مسیح کے پرفضل جلالی نام کا واسطے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ ہالیلویا۔ خدا نے آپ کو سب کو ہاتھ دیے ہیں، آپ خدا ان کی حضور میں ہاتھوں کو لہرا سکتے ہیں۔ کیا آپ خوش ہیں؟ آج سب خوش ہیں۔ کیوں خوش ہے؟ کہ ہم کو خدا نے آج نئی صبح بخشی، دسمبر کا مہینہ دیا، اور خدا نے یہ ہمیں فضل بخشا کہ ہم اس کے گھر میں موجود ہیں۔ آمین، ہالیلویا۔ آج 1 دسمبر ہے اور ہم کرسمس کے مہینہ میں داخل ہو چکے ہیں، اور کلام مقدس فرماتا ہے کہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا۔ وہ شفا دینے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ ہماری زندگیوں کو چھڑانے آیا تھا ان بدیوں سے، ان زناکاریوں سے، ان برائیوں سے جن میں ہم موجود تھے۔ خدا نے ہمیں کیا کیا تھا؟ یہ ایک منصوبہ تھا جو خدا نے ہمارے انسان کے لیے ایک منصوبہ بنایا کہ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ ہم نجات پا سکیں۔ آمین۔ آئے ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے مقدس متی کی انجیل، اس کا 22واں باب اور اس کی 27 اور 28 آیت۔ متی کی انجیل اس کا 22واں باب، اس کی 27 سے لے کر 28 آیت تک پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے۔ خدا ان کے کلام کا پڑھا جانا، سنا جانا اور سمجھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا ان کے کلام میں جو ہم نے بھی پڑھا ہے وہ متی کی انجیل میں مرقوم ہے، اور یہ خداوند یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ ہیں کہ سب سے بڑا اور پہلا حکم کیا ہے؟ تو اپنے پورے دل سے خداوند اپنے خدا سے کیا کر؟ محبت رکھ۔ ہم اپنے عزیزوں سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں، لیکن ایسی محبت جو خدا نے آپ سے، مجھ سے کی ہے کہ وہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا کس کے لیے بخش دیا؟ ہمارے لیے بخش دیا۔ کس کے لیے بخشا؟ ہمارے لیے بخشا، تاکہ ہم اس جس گناہ میں تھے ہم اس گناہ سے بچ جائیں، ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ اگر ہم خدا سے محبت کریں گے تو ہمیں اس کا فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا جی؟ فائدہ ہوگا۔ پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم نجات پائیں گے۔ کیا پائیں گے جی؟ نجات پائیں گے، چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ ہیں، بہت سے مذہب ہیں جو دور دراز جاتے ہیں تاکہ ہمیں کیا مل جائے؟ رہائی مل جائے، چھٹکارا مل جائے، ہم آزاد ہو جائیں۔ لوگ ابھی بھی ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم بچ جائیں۔ کیا طریقہ ہے بچنے کا؟ کیا ہم کریں کہ ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں؟ لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، بڑے غور سے سنیں۔ لوگ ابھی بھی ڈھونڈ رہے ہیں،
गैर मसीही लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं कि कौन है निजात दींदा, किसके वसीला से हमें निजात मिलेगी और हम किसके वसीला से छुटकारा पा जाएंगे। आप बड़े मुबारक लोग हैं, खुदा ने आपको मसीही घरानों में पैदा किया है। आप शुरू ही से खुदावंद की तालीम पर अमल करने वाले हैं, मुबारक लोग हैं, खुदा से मोहब्बत रखते हैं और खुदा भी आपसे मोहब्बत रखता है कि नहीं रखता। हम गीत गाते हैं, असी रब दे बंदे हैं ते रब सानू प्यार करता है। क्यों प्यार करता है? क्योंकि उसने हमें अपने हाथ से खलक किया है। सब चीजें उसने अपने मुंह से बोली और वो होगी, लेकिन जब इंसान की बारी आती है तो उसने अपने हाथों से बनाया। क्या किया जी? क्या किया? मेरे साथ में क्या किया जी? अपने हाथों से बनाया और उसके नथनों में अपना दम फूंका और वो जीती जान हुआ। और खुदा हमसे क्या करता है? बहुत ज्यादा प्यार करता है। और जब हम देखते हैं कि खुदा बाप जो है वो यीशु अल मसीह का बाप था, वो हमारा भी बाप है, और खुदावंद यीशु अल मसीह जो था वो उसका बेटा है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो बाप करता है वही मैं करता हूँ, जैसा बाप करता है वैसा ही मैं करता हूं। तो खुदा क्या करता है? आपसे मोहब्बत रखता है। यीशु अल मसीह भी हमसे मोहब्बत रखता था और वो हमसे मोहब्बत करता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तू पूरे दिल से, दिल जो है वो अबलीस को बहुत पसंद है। अबलीस को क्या पसंद है जी? इंसान का दिल जो है वो अबलीस को बहुत पसंद है, और खुदा को भी इंसान का दिल जो है पसंद है। पसंद है कि नहीं पसंद? पसंद है। लेकिन अगर हम अबलीस के पीछे चलेंगे, हमारा दिल अबलीस की बातों पर ध्यान लगाएगा तो हम जहन्नुम में जाएंगे, अंधेरे में चले जाएंगे, जहां दांतों का पीसना होगा, जहां रोना होगा, जहां चलाना होगा। और अगर हम खुदावंद यीशु अल मसीह पर दिल लगाएंगे, कलाम में लिखा है कि शरीयत की यह किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे दिन और रात इसी का ध्यान रहे, तेरा दिल यहीं पे लगा रहे। और कलाम मुकद्दस में लिखा है तू अपना माल वहां पर जमा कर। कहां पर? आसमान पर, जहां तेरा दिल भी लगा रहेगा। अगर हम खुदावंद यीशु अल मसीह पर अपना ध्यान लगाएंगे, अपना पूरा फोकस, अपना पूरा ध्यान यीशु अल मसीह की तरफ लगाएंगे, तो हम वहां रहेंगे जहां क्या होगा? जहां हमारा खुदा होगा, जहां दूध की नदियां बहेंगी। वहां दांतों का पीसना नहीं होगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी के वारिस होंगे। जो यीशु अल मसीह से प्यार करेंगे, जो खुदा से प्यार करते हैं, वो कभी अंधेरे में नहीं चलेंगे, क्योंकि वो क्या अंधेरा है? नहीं, बल्कि वो नूर है। और जो नूर के पीछे चलता है वो नूर ही में चलेगा और वो नूर में ही जाएगा। आमीन। पहली बात थी कि जब हम यीशु अल मसीह से प्यार करते हैं तो हम क्या करेंगे? हम निजात पाएंगे। क्या करेंगे जी? हम निजात पाएंगे, हम छुटकारा पाएंगे। और दूसरी बात है, हम बुराइयों से बचे रहेंगे। हम फिर दोबारा बुराइयों में नहीं जाएंगे। हमारा जब ध्यान उस पर लगे रहेगा तो हम बुराई में नहीं जाएंगे, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएंगे। तीसरी बात कि हम सरफराज किए जाएंगे। क्या करेंगे जी? सरफराज किए जाएंगे। ज़बूर 103 में लिखा है कि तूने मुझसे दिल लगाया, क्योंकि तूने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं तुझे क्या करूंगा जी? सरफराज करूंगा। मेरे साथ रहिए, क्या करूंगा जी? सरफराज करूंगा। तूने क्योंकि मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं तुझे सरफराज करूंगा। तीसरी बात यह है कि जब हम खुदावंद यीशु अल मसीह से दिल लगाते हैं तो वो हमें सरफराज करता है। आमीन। क्या करता है जी? सरफराज करता है। चौथी बात कि हम सेहतयाब होंगे। सेहतयाब कैसे होंगे? हम कुव्वत पाएंगे और ताकत पाएंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है ज़बूर की किताब में कि तू अज़ सर नो जवान होगा। क्या होगा जी? तू अज़ सर नो जवान होगा। कैसे होगा? जब हम खुदावंद से
दिल लगाएंगे, दिल और जान से उससे मोहब्बत रखेंगे। पांचवी बात, कलाम मुक़द्दस 23 ज़बूर में लिखा है उसकी दूसरी आयत में कि फिर हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। क्या नहीं होगी जी? खुदावंद मेरा चौपान है, फिर हमें किसी चीज़ की कमी होगी नहीं होगी। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, एक मुझे वाक़या याद आ गया। कलाम मुक़द्दस में एक वाक़या कलाम मुक़द्दस बयान करता है, एक बेवा औरत जिसके पास कुछ नहीं था, और खुदा का बंदा उसे कहता है कि तू मुझे पका के दे। क्या दे? रोटी दे पका के। उसके पास थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा तेल कुप्पी में था, लेकिन जब उसने उस बंदा का, खुदा के बंदा का हुक्म माना तो उसने उससे कहा, तो फिर उसके लिए जो बर्तन थे वो भी क्या पड़ गए? कम पड़ गए। खुदावंद ने उसे कसरत से दिया। उसके पास बर्तन खत्म हो गए लेकिन तेल खत्म नहीं हो रहा था। बर्तन खत्म हुए तो तेल मौकूफ हो गया, सो उसके पास रखने के लिए जगह नहीं रही। जब हम खुदावंद से दिल लगाते हैं, पूरे दिल से उससे मोहब्बत करते हैं, तो फिर हमें किसी चीज की कमी नहीं होती। आमीन। और कलाम मुक़द्दस फरमाता है कि जब हम उससे मोहब्बत रखते हैं, और एक आयत खुदावंद की कलाम में लिखी है कि मोहब्बत इसमें नहीं कि खुदा ने हमसे मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमारी खातिर सलीब पर अपनी जान दे दी और अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। आमीन। सो हमें पूरे दिल से, पूरी जान से खुदा से मोहब्बत करनी है। क्या बड़ी खुशी बात है, खुशी की बात है कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वो हमें संभालता है। कुछ दिन पहले मुझे एक SMS रिसीव हुआ, एक मैसेज मुझे आया। मैंने उस मैसेज को खोला। उस मैसेज में लिखा था कि कौन सी रूह ज़मीन पर ऐसी हस्ती है, कौन सी ऐसी हस्ती है जिसने दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। उसमें 3 पॉइंट लिखे हुए थे। एक हीर रांझा था, दूसरा कुछ सस्सी पुन्नू था, और तीसरा कुछ और था। मगर उसके नीचे, सबसे नीचे एक चीज मेंशन थी कि सबसे ज्यादा और अफजल मोहब्बत हमारे यीशु मसीह ने की, जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया, जिसने इंसान को चेंज कर दिया, जिसने आपको और मुझे मौत से निकालकर जिंदगी में दाखिल कर दिया। और वो एक ही हस्ती थी, और वो खुदावंद यीशु मसीह था, जिसने हमें ज़नाकारियों से, हमें गुनाह की जिंदगी में से छुड़ा लिया और हमें एक जिंदगी में दाखिल कर दिया, एक जिंदगी का ताज बख्श दिया। क्योंकि कलाम में लिखा है, जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा और हमेशा की जिंदगी का वारिस हो जाएगा। सो जरूर है कि हम खुदावंद यीशु मसीह से अपना राब्ता दुरुस्त करें, दिलो जान से उस पर ईमान लाएं, उससे मोहब्बत करें, उसे ऊंचा करें। इंसान अपने आप को ऊंचा करने में लगे हुए हैं, लेकिन मेरी आपसे विनती है, बड़ी गौरतलब बात है कि आप यीशु मसीह को पहला दर्जा दें। जब आप खुदावंद यीशु मसीह को ऊंचा करेंगे, उसे ऊपर करेंगे, तो खुदा आपको भी ऊंचा करेगा। आमीन। एक वाक्य मुझे याद आता है कि सिदरक मिसक और अब्दुल नजूद पर अगर गौर करें तो उसमें जलती भट्टी में डाल दिया गया, लेकिन उनका दिल और जान से मोहब्बत करने वाले वो खुदा से साथ थे। खुदा खुद आके उनको छुड़ा देता है। आमीन। उनको फिर मौत से खौफ नहीं आता, उनको जलती भट्टी में डाल दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो बच जाते हैं। और एक और वाक़या कलाम मुक़द्दस में दानियल नबी का है, जिसको शेरों की मांद में डाल दिया गया। लेकिन मैं इस बात पर आप भी जानते हैं कि जब उसको शेरों की मांद में से डाला गया तो शेर ने उसे खा लिया
खा लिया था शेर ने उससे जी? नहीं, बल्कि वो जीतता रहा और शेर ने उसके सामने अपने सर को झुका दिया। क्यों झुका दिया? कि वो दिलो जान से खुदा से मोहब्बत करने वाला था। आमीन। सो हमें भी खुदावंद अपने खुदा से दिलो जान से मोहब्बत करनी है और उसी के साथ अपना दिल को लगाना है। आमीन। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। इस कलाम से वसीला से हम सबों को खुदावंद अपने जलाल के लिए और ज़्यादा बरकतों से भरे। आमीन।